let us discuss the title, The Road Not Taken. It means a road, a path which you have not taken. That means you have not walked over that path. Now I tell you something about this poem. The poem is relevant to our life. In fact, it is very, very relevant to your life. And I'll suggest you कि अगर आप एक बार ध्यान से इस पोएम को समझ लेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये आपकी लाइफ से कितनी ज्यादा रिलेट करती है. Right now, your present situation is such that you can exactly relate to this poem. Basically, in this poem, the poet says that he was faced with the option of two paths in the woods. एक बार ये poet इन woods में, इन जंगलों में घूमने गए थे और वहां पर उनके रास्ते में क्या हुआ? दो रास्ते आ गए. He had two options. This is similar to the career options we have in life and we have to choose one out of them. इन दो रास्तों से पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि सिमिलरली आप सबकी जिंदगी में भी अभी ऐसा टाइम आया हुआ है, आप ऐसे मुकाम पर हैं जब आपके रास्ते में भी दो या फिर बहुत सारे पाथ्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं अपना करियर चूज करने के लिए और आपको उनमें से कोई भी एक करियर चूज करना है. तो यहाँ पर ये जो रोड्स हैं, ये जो पाथ्स हैं, this implies the options which a person has in life. जिंदगी में बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और हमें उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करनी होती है. सो वी लुक आउट कि कौन सी इजियर ऑप्शन है, कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है, किस पे हमें ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी, क्या ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और हम वो वाला ऑप्शन चूज करने की सोचते हैं. The poet Robert Frost. He was born in the year 1874 in San Francisco, USA, and he died in 1963 in Boston, USA. His full name is Robert Lee Frost. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. So, before being famous in his own country, he got fame in England. And after that, his works were subsequently published in America. He is one of the most popular and respected American poets of the 20th century. Now, Robert Frost is very famous. He is most respected American poet of the 20th century. Frost received 4 Pulitzer Prizes for poetry. इन्हें 4 बार Pulitzer Prizes भी दिए गए हैं. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. And on July 22, 1961, Frost was named the Poet Laureate of Vermont. Vermont is also a place in America और इस जगह पर इन्हें Poet Laureate का खिताब भी दिया गया था. These are some of the awards and honors given to Robert Frost. I'll give you a brief introduction of this poem and the purpose why it is important for us. In this poem, the poet talks about a choice he has to make between two roads. The poet reaches a point where he has two roads out of which he has to choose any one. Now, आप दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते, आपको इन दोनों में से कोई भी एक रास्ता चूज करना है. And that is what happened with the poet also. Here the road is compared to the different career options we face in our life and have to choose any one. The poet wants to convey an important message to us. Now I told you this poem is very relevant. It is very important. क्या मैसेज ये पोएम हमें दे रही है? क्यों हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं? Our future depends on our present. The career option we choose today will determine what we become tomorrow. And we must be very careful as we do not get the privilege to go back on the option we have once left. Now, this poem is important. हमें एक ही बार मौका मिलता है अपना करियर चूज करने का, अपने करियर में ऑप्शन को सिलेक्ट करने का और फिर क्या होता है, हम उसी रास्ते पर आगे आगे चलते जाते हैं. पहले +2 करते हैं, उसके बाद बैचलर्स करते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, उसके बाद डॉक्टरेट करते हैं. बट हमें ये
ऑप्शन, ये फैसिलिटी, ये प्रिविलेज नहीं मिलती कि हम अपना रास्ता बदल के कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर लें. In the first line, the poet is giving a description of this forest. He says it was a yellow-colored wood. It was a yellow-colored forest. All the leaves had turned yellow in the season of autumn. And over there, two roads diverged. वहां पर दो रास्ते थे और वो फील करते हैं कि हाय, मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता. ऑब्वियसली मैं एक ट्रैवलर था, मैं एक इंसान था और मैं एक ही रास्ते पर चल सकता था. और मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि मैं इन दोनों में से किस रास्ते पर जाऊं. और फिर मैंने क्या किया, मैंने नीचे झुककर एक रास्ते को देखा भी, दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही थी, जहां तक उस रास्ते में एक मोड़ आ गया था और बहुत सारे घने घने पेड़ थे जिनकी वजह से आगे मुझे दिख नहीं रहा था, वहां तक मैं उस रास्ते को देखता रहा. अब यहाँ पर पोएट क्यों खड़े हैं, क्यों कंफ्यूज हैं, क्यों इस रास्ते को इतनी दूर तक देख रहे हैं? क्योंकि वो ये डिसाइड कर नहीं पा रहे कि किस रास्ते पर चलें. वो ये चाहते हैं कि वो इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों रास्तों में से जो बेटर रास्ता है उसको चूज करें. और यही डिसाइड करने के लिए वो इतना टाइम लगा रहे हैं. काफी देर तक वो खड़े रहे, यानी कि वो वॉक करके, पैदल चल के इस फॉरेस्ट में से जा रहे हैं. काफी देर तक वो यहाँ पर खड़े रहे ये सोचते हुए कि इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए. नाउ लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस स्टैंजा. सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम डिस्कस करते हैं. राइम स्कीम मीन्स जो लास्ट वर्ड्स है उनमें क्या म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है. इसकी राइम स्कीम, इनफैक्ट इस पूरी पोएम की राइम स्कीम है A B A B. Now what do I mean by this? It means line 1, 3 और 4 में एक ही साउंड रिपीट है और लाइन 2 और 5 में दूसरा साउंड रिपीट है. देखते हैं. लाइन 1 would, लाइन 3 stood, लाइन 4 could. तो ये तीनों आपस में राइम कर रहे हैं, इसे हम कह देते हैं A. Now let us see line 2 both and line 5 growth. तो ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, इनको हम कह देते हैं B. So the rhyme scheme comes out to be A B A A B. Then took the other. उन्होंने दोनों रास्तों को इंस्पेक्ट किया. एक रास्ते को मोड़ तक इंस्पेक्ट किया और उसके जो घने घने पेड़ थे और जहां तक वो उन पेड़ों के नीचे छुपा नहीं था वहां तक उन्होंने उस रास्ते को इंस्पेक्ट किया. लेकिन फिर उन्होंने फाइनली जो दूसरा रोड था उसे चूज कर लिया. लेकिन दोनों रास्ते एक जैसे ही थे, दोनों रास्ते सिमिलर थे. लेकिन perhaps वो ये कहते हैं मे बी, जब मैंने ये दूसरा रास्ता चूज किया तो मैंने यही सोचा होगा कि ये दूसरे वाले से बेटर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा that it was grassy, it was full of green grass and it wanted wear. That means उस पे अभी कोई ज्यादा लोग चल के नहीं गए थे, हरी हरी घास थी और ऐसा लग रहा था कि अभी वो रास्ते पर कोई ज्यादा लोग चले नहीं हैं. बड़ा ही हरा भरा सुंदर दिखने में वो रास्ता मुझे लग रहा था और इसीलिए मैंने इन दोनों रास्तों में से इस रास्ते को चूज किया. लेकिन दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी कि जब मैं उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे तक चला तो मैंने क्या देखा, warned them really about the same. थोड़ा दूर जाने पर मुझे ये पता लगा कि ये रास्ता भी उतना ही डैमेज्ड है, उतना ही worn out है, उतना ही यूज्ड है जैसे कि फर्स्ट वाला रास्ता था. और इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों रास्ते सिमिलर थे. So here in this stanza the poet tells us that morning when he had reached upon this option of these two roads, both the roads seemed same to him. किसी भी रोड पर अभी कोई चला नहीं था, दोनों पे ही हरे हरे पत्ते थे. अभी किसी ने भी अपने शूज के साथ उन पत्तों को क्रश करके ब्लैक कलर का नहीं किया था. तो दोनों रास्ते बहुत फ्रेश थे. वो इंतजार कर रहे थे कि
कोई उन पर आकर चले। और फिर वो ये कहते हैं कि मैंने पहले वाले रास्ते को ये सोचकर छोड़ दिया कि मैं किसी और दिन आकर इस रास्ते पर चलूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही रास्ता मुझे आगे 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 कहीं और लेता जाएगा और कभी भी मुझे ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं वापस आऊं और फिर उस दूसरे रास्ते पर चलूं।